Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita. Today we are going to solve class 2 model question paper number 1. Talent Search General Knowledge Exam practice question paper number 1. Total time 1 hour 30 minutes. Standard 2 English, and here total marks 150. Let's start. Part 1 English language. Question 1 to 3. Read the following conversation carefully and answer the questions. Mother: Mohan, take your notebook and write down 10 lines in good handwriting. Mohan: Oh no, mother. Is it really need of it? Father: Look, Mohan, good handwriting is the real jewel. So improvement in handwriting is much needed. Mother: Mohan, what will happen if we does not sorting the rice before cooking? Mohan: The stone will remain in the cooked rice and it will injurious to our teeth. Mother: Do you realize the importance of good handwriting? Mohan: Yes, mummy. I will always try to write in good handwriting. This is the conversation. Now questions. Question number 1. According to you, where did above conversation take place? In school, in grocery shop, in home, in hotel. So option 3 is correct. In home. Question 2. Which of the following is real jewel? Good health, good teeth, good handwriting, writing on notebook, good cooked rice. So option 2 is correct. Good handwriting. Question 3. Who realizes the importance of good handwriting to Mohan? A. Mother, B. Teacher, C. Father, D. Brother. Here in conversation, अगर आपने देखा होगा कि मोहन को उसकी मम्मी और पापा दोनों बता रहे हैं, इसलिए A और C करेक्ट है. So option 3, only A and C are correct. Question number 4. Choose the correct alternative of neuter name. न्यूटर नेम मतलब कि जो मेल भी नहीं है और फीमेल का भी पता नहीं चल रहा है उस नाम से. हेन फीमेल है, देखिए चिकन न्यूटर है, गोट फीमेल है, कॉक मेल है. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इज करेक्ट? ऑक्स, ऑक्सेस, मैन, मैन्स, वुमन, विमेन, जार, जार्स. तो ऑप्शन 3 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ. तो यहाँ पर वी और ब्रश, ये दो वी और आर, ये दो प्रोनाउंस हैं. So option 2 is correct. Question 7. Which of the following sentence is not of past tense? John loved other sports. Loved आया है, ed लगा है, ये past tense है. रामराव had 5 sons. Had ये भी past tense का sentence है. गणेश writes the letter. राइट्स ये प्रेजेंट टेंस में आता है, एस लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है. देयर लिव्ड 2 लिटिल फ्रॉग्स. लिव्ड भी पास्ट टेंस का है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 8. व्हाट इज द कलर ऑफ बीक ऑफ पैरेट? बीक मतलब चोंच, तो पैरेट की चोंच का कलर रेड होता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है. क्वेश्चन 9. फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल अल्टरनेटिव. The dog dash at night. Barking नहीं आएगा. Option 3 is correct. Barks. The dog barks at night. Question 10. Which fruit have many seeds? मैंगो को एक ही सीड होता है, वाटरमेलन को बहुत सारे सीड्स होते हैं, आलमंड सिंगल होता है, डेट्स को भी सिंगल सीड होता है. So option 2 watermelon is correct. Question 11. How many types of punctuation marks are used in the following sentence?
यहाँ देखिए एक कॉमा आया है और एक कॉमा आया है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आया है और फुल स्टॉप आया है, इसलिए टोटल 4 पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। CEMIK नहीं आता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 to 15, read the following poem carefully and answer the questions given below. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. ये पोएम है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। What did the boy find? Soft cloth, a shell. Option 2 is correct. Question 14. Find the synonym of word mild from the poem. So पोएम में सॉफ्ट ये वर्ड आया है, क्लियर, पिक, नाइस, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 15. हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर मेंशन इन द अबव पोएम। सो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम देखेंगे तो टोटल 2 बॉडी पार्ट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, एक है हैंड और दूसरा है ईयर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर एक पजल दिया है, वहाँ एक सर्कल और स्टार है जो मिसिंग है अल्फाबेट्स। सॉल्व द गिवन क्रॉसवर्ड पजल बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव एट द प्लेस ऑफ सर्कल एंड स्टार। यहाँ पर आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। जैसे सर्कल की जगह पर अगर P रखा और स्टार की जगह पर O रखा, सो PAOT कोई वर्ड नहीं बन रहा है। हम सेकंड देखते हैं, EART, ये भी कोई वर्ड नहीं है। थर्ड देखिए, CART, ये कार्ट बन रहा है। CARE केयर भी बनता है, PART पार्ट भी बनता है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 17, विच विल बी द थर्ड वर्ड व्हेन अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं चेस, कैटल, कैच और कैमल। सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा कैमल, फिर आएगा कैच, देन थर्ड कैटल और फिर चेस। क्वेश्चन ये है कि थर्ड वर्ड कौन सा होगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैटल विल बी द थर्ड वर्ड। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, विच इज द क्राइज ऑफ एनिमल इन एडजॉइनिंग पिक्चर। यहाँ पर डोंकी का पिक्चर दिया है। डोंकी का क्राई होता है ब्रेज। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओपन योर आईज, ओपन का ऑपोजिट होता है क्लोज या फिर शट। देयर, फ्री, क्लोज, लीव, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, find the correct compound word from the following alternatives. फर्स्ट है न्यूज़पेपर। कंपाउंड वर्ड्स मतलब 2 अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन किया है और दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर, सो न्यूज़ एक अलग वर्ड है, पेपर अलग है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, चूज द रॉन्ग पेयर ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ईगल, ईगलेट, ये करेक्ट है। डॉग, पपी करेक्ट है।
हॉर्स मेयर। अब ये जो है हॉर्स, ये मस्कुलिन फेमिनाइन का हो गया, क्योंकि करेक्ट आंसर होना चाहिए हॉर्स कोल्ट, इसलिए ऑप्शन 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन 22, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटडोर गेम। आउटडोर गेम मतलब बाहर खेलने वाला मैदानी खेल नहीं है। फर्स्ट फुटबॉल, सेकेंड कैरम। देखिए कैरम घर में बैठ के खेलते हैं, ये इंडोर गेम है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 23, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ प्रोटेक्ट। फर्स्ट है गार्ड, गार्ड मतलब भी प्रोटेक्ट होता है। डिस्ट्रॉय ये एंटोनिम है। सेव ये भी प्रोटेक्ट का ही दूसरा सिनोनिम है। वेल्थ, वेल्थ रिलेटेड नहीं है। ए और सी करेक्ट है, सो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ओनली सी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड फॉर इक्वल। सेम, सीक्वल, अनइक्वल, इनइक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन 3 अनइक्वल। क्वेश्चन 25, विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज डेली। डेली मतलब जो रोज पब्लिश होता है वो। सो ऑप्शन 1 पब्लिश्ड एवरी डे इज करेक्ट। नाउ पार्ट 2 मैथमेटिक्स। टोटल 25 क्वेश्चंस, मार्क्स 50। क्वेश्चन 26, which alternative does indicate the time 3:30 in the clock। 3:30 मतलब 3:30। So option 2 is correct. Question number 27, which will be the proper alternative in the empty box to complete the figure pattern। यहाँ पर देखिए फिगर पैटर्न दिया है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 x है, उसके बाद 3x आए, उसके बाद 2, मतलब हर बार x की वैल्यू 1 से कम हो रही है। 2 के बाद 1 आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग क्यूबॉइड शेप फिगर। A, cuboid has 6 surfaces। B, cuboid has 8 vertex point। C, all the surfaces of cuboid are circular। पहले 2 करेक्ट है लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एक फिगर दी गई है और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर इन एडजॉइनिंग फिगर। ट्राइंगल ये एक ऐसा शेप है जिसमें 3 साइड्स होती है, जैसे यहाँ से देखिए ये 1 2 और ये 3, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 ये नहीं है, 1 2 3 ये सेकेंड ट्राइंगल बना, 1 2 3 4 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 ये भी नहीं है, इसलिए there are only 2 triangles, so option 1 is correct. Question 30, if 26 January 2017 is fall on Thursday, then how many total days are there in February month of this year। अब देखिए 26 जनवरी 2017 ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है ये रेगुलर ईयर है। तो रेगुलर ईयर जब होता है तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर ये जो है हाफ मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्वार्टर टू 1 1 एंड हाफ, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 32,
What must be the answer of addition 20 plus 20? 20 plus 20 40 होता है, में 40 यूनिट्स है, मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये भी करेक्ट है। 4 टेंस मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये भी 40 होता है, सो ये भी करेक्ट है। और 20 प्लस 20 40, सो ऑप्शन 1 2 3 सारे करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन 33, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मेनी? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 7 ऐड हुआ है, 7 5 ज़ा 35, so option 2 35 is correct. Question 34. In which of the following number if we add 1 the answer will be an even number? अब देखिए फर्स्ट है 22, 22 प्लस 1 किया तो 23 आया, 23 ये ऑड नंबर है। 10 प्लस 1 11, ये भी ऑड है। 19 प्लस 1 किया तो 20 आता है, और 20 ये एक इवन नंबर है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर 42 इज हाउ मच लेस देन द नंबर 5? द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इज यूनिट्स, मतलब यूनिट्स प्लेस है, 1 आएगा। 5 माइनस 1 हो गया 4, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है, तो अगर यहाँ पर प्लेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू हो तो फेस वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, सो ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 36, इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹6 देन व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 9 पेन्स? मतलब एक पेन की प्राइस 6 रुपये है, तो 9 पेन की कितनी होगी? इसमें हमें 6 का टेबल बोलना है 9 टाइम्स, सो 6 9 ज़ा 54, मतलब हमें 54 रुपीज़ लगेंगे, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर दो नंबर्स दिए हैं 8 एंड 5। विच बिगेस्ट नंबर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द ईच डिजिट ओनली वंस? दोनों डिजिट्स एक ही बार लेकर कौन सा नंबर सबसे बड़ा, कौन सा नंबर बन सकता है? जब हमें बड़ा नंबर बनाना हो तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 38, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 a box 0 plus 3, then which must be the proper sign in the empty box? हमें पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 0 ज़ा 0 होता है, और 0 प्लस 3 या 3 प्लस 0 किया तो हमें 3 मिलता है। अब 0 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए लेस देन साइन आनी चाहिए, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10 इंटू 10 इज 100, इसका मतलब 100 करेक्ट है, 100 यूनिट्स भी करेक्ट है, और 10 टेंस, 10 टेंस ये भी करेक्ट है, सो ऑप्शन बी सी और डी करेक्ट है, सो फर्स्ट इज आवर आंसर। क्वेश्चन 40, विच आउट ऑफ फॉलोइंग फिगर इज मोस्ट सुटेबल फॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर? यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी है और उस हिसाब से कौन सा फिगर करेक्ट होगा। फर्स्ट है हैज़ 4 साइड्स, नेक्स्ट है ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट साइड्स नहीं है, इसलिए ये नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 साइड्स हैं। रेक्टेंगल में देखिए फर्स्ट जो है हैज़ 4 साइड्स, ये करेक्ट आ रहा है, और ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर 5 साइड्स है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक दिया है। विच थिंग्स मेजरमेंट डज द एडजॉइनिंग वेट यूजफुल फॉर? शुगर, राइस, ग्राउंडनट। तो हम ये सारी चीज़ें किलो के हिसाब से लेते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 ऑल आर करेक्ट ये आंसर है। क्वेश्चन 42,
Ramrao bought 45 story books from library. Out of it, 13 books and 11 books are read by Manohar and Shekhar respectively, and remaining books are read by himself. Then how many books does Ramrao keep for himself? Respectively का ये मीनिंग है कि जो पहला नंबर आता है वो फर्स्ट का और सेकेंड नंबर जो है वो सेकेंड का। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले 13 + 11 ऐड कर लेंगे और फिर वो 45 में से माइनस करेंगे। सो 13 + 11 ये होते हैं 24। 45 - 24 करेंगे। 5 - 4 1, 4 - 2 2, मतलब 21 बुक्स रामराव ने अपने लिए रखी थी। ऑप्शन 1 21 इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, हाउ मेनी टोटल ऑड नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 2 to 30 नंबर्स, मतलब 2 से 30 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स देखिए अल्टरनेट होते हैं, मतलब 2 के बाद 3 ऑड है, फिर 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, ऐसे। सो ये अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आता है 14। इसको और एक मेथड है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 30 - 2 ये हो गए 28। क्यों? क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है 30 तक, इसलिए हमने माइनस कर लिया। अब ये है 28। 28 में एक नंबर अगर इवन है तो दूसरा ऑड है, ऐसे अल्टरनेट है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 8 आया नीचे, 2 4 ज़ा 8। सो आपका आंसर आता है 14। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे 47, 74, 44, 77 और 41। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन एडजॉइनिंग सर्कल। सब में देखिए जो 40 वाले हैं वो 70 वालों से कम है, लेकिन 47, 44, 41 इसमें सबसे छोटा है 41। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द अल्टरनेटिव डज इंडिकेट द लाइन्स। लाइन्स मतलब जो दोनों साइड एक्सटेंडिंग है, ये रेज है, ये सेगमेंट्स है, ये लाइन्स है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, यहाँ पर सर्कल दिया है और स्टार दिया है, प्लस स्टार एंड सर्कल, और उसके बाद 2 फ्लावर्स। क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग एडिशन एग्जाम्पल, यहाँ पर सर्कल दिया है विच इज़ 5, स्टार मीन्स 3, देन विच विल बी द नंबर एट द प्लेस ऑफ फ्लावर। सर्कल है 5 और स्टार है 3, सो 5 + 3 + 3 + 5 ऐड अगर किए तो हमें मिलता है 88, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, if the given numbers are written in descending order, then which number will be in the second place from starting। इन नंबर्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 57, 55, 53, 50। क्वेश्चन ये है विच नंबर विल बी द सेकेंड प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग है, सेकेंड प्लेस पर है 55। So option 1 is correct. Next question 48. The following pictorial table indicates the information of number of passengers traveling by various vehicles. On basis of it, answer the following questions. Table दिया है, अलग अलग vehicles से traveling के number of people दिए हैं। Question, in which of the following vehicle does the more number of passengers travel। तो हम अगर ऑब्जर्व करें सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स बस के लिए हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन 49. विच ऑफ द फिगर डज नॉट हैव एन सिंगल एज और कॉर्नर? ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें एक भी एज नहीं होता है और कॉर्नर नहीं होता है? तो ऐसा सिर्फ सर्कल में होता है. सो क्वाड्रिलैटरल, रेक्टेंगल, सर्कल. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 50. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी मेजर्ड प्रॉपरली इन किलोमीटर? तो किलोमीटर हमें पता है सबसे बिगेस्ट मेजरमेंट है. तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ ऑफ नोटबुक, ये हम सेंटीमीटर में देखेंगे. डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड सातारा. अब देखिए दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. पार्ट 3 इंटेलिजेंस टेस्ट. टोटल 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के. क्वेश्चन 51. प्रियंका ऑन द स्कूल्स प्लेग्राउंड standing facing towards east side, then which will be the direction at right hand side of Priyanka? यहाँ पर प्रियंका है वो ईस्ट साइड में फेस करके खड़ी है. तो जब हम ईस्ट साइड में फेस करके खड़े होते हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो पेपर टर्न कर सकते हैं. ये ईस्ट साइड है जैसे अभी हम फेस कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है. अब अगर आप सीधा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड जो है वो इस तरफ आ रहा है. तो इस तरफ होती है साउथ डायरेक्शन. मैं रेफरेंस के लिए आपको डायरेक्शंस लिख देती हूँ. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे डायरेक्शंस होते हैं. सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 52. In the given sign series, which alternative sign series will be in the question mark place? Triangle, circle, cross, rhombus. अब देखिए ट्रायंगल एज इट इज़ है, सर्कल भी एज इट इज़ है, लेकिन इनकी प्लेस एक्सचेंज हो गई है. मतलब लास्ट के दो है उनकी प्लेस एक्सचेंज हो गई है. उसके बाद है क्वेश्चन मार्क. अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर रोम्बस है, ट्रायंगल है, ओ और एक्स. देखिए यहाँ पर ट्रायंगल था वो अब सेकेंड प्लेस पर आ गया है. उसके बाद रोम्बस था वो फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, मतलब यहाँ पर आ गया है. एक्स एज इट इज़ है, इसका मतलब नेक्स्ट लेवल पर ये दो एक्सचेंज हो गए हैं. तो इसलिए नेक्स्ट फिगर आना चाहिए ट्रायंगल, रोम्बस, ओ एक्स. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53. विच इज़ द थर्ड अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फ़ाबेट एच इन द गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज़? हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ रेफ़र करते हैं और देखते हैं. विच इज़ द थर्ड अल्फ़ाबेट टू द लेफ्ट साइड. एच अल्फ़ाबेट कहाँ है? ये देखिए एच. एच यहाँ पर है. हमारा राइट साइड मतलब ये साइड होता है, लेफ़्ट साइड मतलब ये साइड होता है. तो हमें देखना है कौन सा थर्ड अल्फ़ाबेट है लेफ़्ट साइड में. तो ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ई ये थर्ड अल्फ़ाबेट है. सो ऑप्शन 3 करेक्ट. क्वेश्चन 54 एंड 55. फाइंड द टर्म दैट डज नॉट मैच द ग्रुप. हमें ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55. फाइंड द टर्म दैट डज नॉट मैच द ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 54. फर्स्ट 23, 3, 4, 17. अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ 4 ये इवन है, बाकी सारे ऑड है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 55. फर्स्ट देखिए दो सर्कल है, आंखें हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन है. यहाँ पर शेप ऐसा है. यहाँ पर हाफ जो है लेफ्ट साइड का शेडेड है. सेकंड में देखें तो राइट साइड का शेडेड है, बाकी सब में लेफ्ट साइड का है, इसलिए ऑप्शन 2 इज ऑड. क्वेश्चन नंबर 56.
Rahim is taller than Sandesh. Robin is taller than Rahim. Samir is taller than Robin. Then who is the shortest one? Rahim is taller than Sandesh. तो जैसे यहाँ पर अगर हमने लिख दिया संदेश, तो रहीम संदेश से टॉलर है. रॉबिन इज टॉलर देन रहीम, मतलब रॉबिन रहीम से टॉलर है. और समीर इज टॉलर देन रॉबिन, तो समीर रॉबिन से टॉलर है. तो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया संदेश. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 57. The Maharashtra Day is fall on Monday in the year 2017. Then which will be the weekday on 31st of this month? मतलब महाराष्ट्र डे अगर मंडे को है, महाराष्ट्र डे आता है 1st ऑफ मई 2017, ये था मंडे. तो हमें देखना है 31st ऑफ दिस मंथ, 31st को कौन सा डे होगा ये हमने फाइंड आउट करना है. हमें पता है जो डे 1st को होता है सेम डे 29th को होता है. जो डे 2nd को होगा वो 30th को, और जो डे 3rd को होता है वो सेम डे 31st को होता है. अब फर्स्ट जो है वो मंडे था, 2nd ट्यूसडे और 3rd वेनसडे. सो 31st को भी वेनसडे ही होगा. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 58. हाउ मेनी नंबर्स हैव द एडिशन ऑफ डिजिट इज 5 आर देयर इन द गिवन नंबर सीरीज? एडिशन ऑफ डिजिट 5 मतलब जैसे 1 + 4 किया तो 5 आता है. 1 + 5 6 हो गया, मतलब ये नहीं है. 2 + 1 3, ये भी नहीं है. 2 + 3 देखिए, 2 + 3 ये 5 आता है. 2 + 5 हो गया 7, 2 + 4 हो गया 6, 2 + 7 9, 3 + 1 4, 4 + 1 ये भी 5 होता है. 5 + 0 ये भी 5 होता है. 5 + 5 10 होता है. मतलब टोटल ऐसे 4 नंबर्स है जिनका एडिशन 5 आता है. सो ऑप्शन 2 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 59. अनुष्का's position is 11 from front side and 9 from back side in drill now. How many total girls are there in the row? मतलब एक लाइन है, उसमें अनुष्का की पोजीशन स्टार्टिंग से फर्स्ट साइड से 11th है और पीछे से 9th है. तो टोटल कितनी गर्ल्स है ये फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों का एडिशन करेंगे. 11 + 9 जो होता है 20. अब यहाँ क्या हो गया, अनुष्का को हमने 2 टाइम्स काउंट किया. पहले वो 11th है, मतलब स्टार्टिंग से 11th है, पीछे से 9th है. तो इसलिए हम -1 करेंगे क्योंकि हर एक लड़की को हमें एक ही बार काउंट करना है. इसका मतलब टोटल 19 गर्ल्स है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 and 61. There is some type of relation between the first and the second term. Similar is the relationship between the third and the term at the question mark. Which term must be in place of question mark? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, पहले ये 3 स्ट्रेट लाइन्स थी तो उसका ट्रायंगल बन गया, मतलब ये लाइन और ये लाइन कनेक्ट हो गई, क्लोज हो गई. अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 लाइन्स है, तो नेक्स्ट फिगर होनी चाहिए 4 लाइन्स लेकिन क्लोज्ड. तो ऑप्शन 3 में ये हो रहा है. सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. मिल्क, लीटर, राइस, क्वेश्चन मार्क. मिल्क हम लीटर में मेजर करते हैं, तो राइस हम किलोग्राम में करते हैं. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 62. EORS. From these letters prepare meaningful word and find the last letter of that word.
इससे हम ROSE रोज ये वर्ड बना सकते हैं। लास्ट लेटर है E, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, विच विल बी द प्रॉपर नंबर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज? 16, 20, 25, क्वेश्चन मार्क 38। यहाँ पर सबसे पहले हमें 16 और 20 के बीच में क्या रिलेशन है ये ढूंढना होगा। जैसे 16 + 4 किया तो 20 मिलता है। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे तो 20 + 5 किया तो 25 मिला। मतलब देखिए हर बार एक नंबर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। सो 25 + 6 करेंगे तो 31 मिलेगा। लेकिन हम क्रॉस चेक करते हैं कि सेम रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो 31 + 7 करें तो 38 मिला, जो कि लास्ट नंबर है। इसका मतलब ये रूल करेक्ट है। सो ऑप्शन 4 31 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, इफ January is called March, March is called July, July is called August, August is called November, November is called January, then which month we will celebrate the Independence Day? अब इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आता है। अगस्त को हम क्या बोल रहे हैं? अगस्त इज कॉल्ड नवंबर। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 65, द फॉलोइंग फिगर हैज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस, आइडेंटिफाई दैट एंड विच फिगर विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड जा रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर है। अब लेफ्ट के साथ राइट साइड है और एक स्क्वायर है, बीच में और एक ऐड हो गया। मतलब ये सीक्वेंस 1 by 1 ऐसे पैटर्न ऐड कर रहा है। नेक्स्ट में 4 आ गए। अब 4 के बाद 5 आएगा, जैसे ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 4 में भी 5 है, लेकिन यहाँ पर सर्कल है, हमें स्क्वायर चाहिए है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, विच विल बी द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अब क्वेश्चन फिगर में देखिए BACD ऐसा लिखा है और स्वस्तिक जैसा यहाँ पर साइन करके रखा है। अब यहाँ पर जब मिरर इमेज आती है तो जो यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट में दिखेगा, जो लेफ्ट में है वो राइट साइड में दिखेगा। तो देखिए ये A, ये ऐसे C हो गया। A तो सेम रहेगा, B हमें देखना पड़ेगा, और D। ये लाइंस भी देखिए, पहले यहाँ पर है फिर ऊपर है। ये पहले राइट से स्टार्ट हो रहा था, अब लेफ्ट से स्टार्ट होगा। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर एक फिगर दी है 3, 12, 4, 5, 15, 3 क्वेश्चन मार्क 6। यहाँ पर हमने रिलेशन रो वाइज देख सकते हैं या फिर कॉलम वाइज भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। जैसे 3 है, 5 है, 3 है। सो ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, इसलिए अब हम रो वाइज देखते हैं। देखिए 3, 12, 4। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। उसी रूल से 3 6 ज़ा 18। सो ऑप्शन 3 18 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, by how many more is the number of circles than the rectangles in the adjoining figure? 1, 2 और कोई रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये फेस वाला भी है, मतलब टोटल 8 सर्कल्स है। सो 8 - 2 will be 6. So answer 4 by 6 is correct. Question number 69. In a code language, the letters and signs are given. Find the answer of the given questions. यहाँ पर लेटर्स दिए हैं,
और यहाँ पर साइंस दिए हैं। क्वेश्चन, इन द अबव कोड लैंग्वेज विच वर्ड डज इंडिकेट स्क्वायर, ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर है C, ट्रायंगल है A, CA और रेक्टेंगल है R, सो CAR। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 70 to 72, फाइंड द टर्म दैट मैचिंग द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर एक पेंटागन है, दूसरा पेंटागन है, फिर एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है। ये सारे देखिए थोड़े से ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर 3 है तो ये नहीं है, सर्कल यहाँ कहीं पर नहीं है और दूसरा ओवरलैप होना चाहिए, ये बिल्कुल अंदर है तो ये नहीं है। ऑप्शन 3 देखिए, सर्कल और ये दूसरा ओवरलैपिंग सर्कल, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, राइस, शुगर, व्हीट डैश, ऑयल, वाटर, मिल्क, ग्राउंडनट। तो यहाँ पर ये बाकी के 3 लिक्विड्स है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 4 ग्राउंडनट इज करेक्ट। क्वेश्चन 72, 15, 25, 20 डैश। सो 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 5 20, तो इसमें कैसा है प्लस 10 माइनस 5, सो इसमें वापस प्लस 10 होगा, सो 20 प्लस 10 30, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विच विल बी द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिगर है और यहाँ पर आंसर फिगर्स है। वाटर रिफ्लेक्शन मतलब साइड सेम होती है लेकिन अपसाइड डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लाइंस ऐसी है ना, तो वो अब ऐसे हो जाएगी जैसे यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। फिर यहाँ स्टार है, यहाँ स्क्वायर है। ये स्क्वायर की जो लाइन है वो राइट से लेफ्ट जा रही है, तो अब फिर से राइट से लेफ्ट लेकिन नीचे की तरफ जाएगी, जैसे यहाँ पर दी है देखिए। वैसे ही सेम इस फिगर का होगा और इसका भी, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, यू हैव टू हेल्प ड्रॉट स्ट्रिकन पीपल्स, व्हाट विल यू डू। ड्रॉट मतलब जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, उसे ड्रॉट कहते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ पर या ऐसी जगह जहाँ पर ड्रॉट है, ऐसे लोगों को आपको हेल्प करना है। आप क्या करेंगे, विल ब्लेम ऑन द नेचर फॉर नॉट रेनिंग, है ना, नेचर पर हम ब्लेम डाल देंगे कि बारिश ही नहीं हो रही है। सेकंड, विल कलेक्ट द फंड फॉर देम, आप उनके लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे। थर्ड, विल अवॉइड हेल्पिंग फॉर देम, आप इग्नोर कर देंगे। और फोर्थ है ऑल आर करेक्ट, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज द एग्जैक्ट मैच ऑफ द क्वेश्चन फिगर। एग्जैक्ट मैच मतलब जैसी क्वेश्चन फिगर दी है बिल्कुल वैसी ही और एक फिगर हमें ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए, एक रोम्बस है, उसके बाद 1 2 3 लाइन है, बीच में एक सर्कल है, स्टैंडिंग लाइन सर्कल, फिर यहाँ रोम्बस और बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 में, लेकिन यहाँ बीच में चेंज हो गया है इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर सर्कल हो गया इसलिए ये नहीं है। ये ब्लैंक है, स्ट्रेट है और रोम्बस फिल्ड अप है। ये देखिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो गई है, सो ऑप्शन 4 नहीं है।